Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are discussing the Hindu newspaper of January 15th, 2024. Maldives president sets deadline for India to withdraw troops. As per the ongoing war between the two countries, Maldives president have said that India should remove its own troop from the island. And in the meeting with Chinese president and afterwards, he said that no country can be bullied. We are a small country and the small country cannot be bullied. This showcases that there is a strain in ties. But I think, as a responsible global power, India should mend ties with Maldives because Maldives location is very important in the Indian Ocean region. And इसी के लिए एक वर्ड जो important है, that is wait and watch diplomacy, which India is following, closely following. तो ये सकते हैं. Looking for work in Israel. Read the fine print, says trade union and activist. 1 month back, Israeli government had given some notification that they are replacing the Palestinian workers with the Indian workers. 1 lakh, I think. Exact जो डेटा था, मानसी आप बता सकते हो. The official from at least two states, Uttar Pradesh, Haryana, are preparing to screen thousands of people, applicants for jobs in Israel. And the worker will not be able to even be required to register themselves on the immigrant portal run by the external ministry. E-migrate system एक important है, introduced by government to streamline the guarantee for worker, will not be used for those going to Israel. तो एनडी तो इसमें लिखा हुआ है कि ट्रेड यूनियन, हाँ, अ पैम्फलेट लिंक टू एनडीएससी पोर्टल बिल्ड द जॉब कॉल द पासपोर्ट टू ड्रीम अब्रॉड. तो एनडीएससी नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीएससी. इसमें वैसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि दे से द वर्कर विल हैव टू पे द टिकट्स अपार्ट फ्रॉम 10,000 फैसिलिटेटेड फीस इन द एनडीएससी. They will not receive any insurance, medical cover, job guarantee, which the government insists on making those heading to the other labor market. ठीक है. Overall issue है कि if the Israel is talking about increasing the increase of the Indian workers in Israel, then there should be some form of job security or labor rights. जैसे for example यहाँ पर अदर प्रोटेक्शन, फॉर एग्जांपल रिक्रूटमेंट हो गया, नर्सेज हो गया, बाकी सबके लिए भी एक मेडिकल कवरेंस, जॉब गारंटी एक्सेट्रा जो नहीं मिला है, इनको नहीं मिलेगा. तो ये लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि किया जा सकता है. रीजन मानसी क्या हो कोई बोल. सकता है उसे? मैं यहाँ पे ये बोलूंगी, गवर्नमेंट की तरफ से एक रीजन ये भी है कि कुछ ऐसी टेरिटरीज हैं विच गवर्नमेंट डज नॉट रिकॉग्नाइज कि वो इजरायली टेरिटरीज है, तो अगर हम्म. आपको वहां पे भी भेजा जाएगा तो गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू टेक गारंटी फॉर योर प्रोटेक्शन। हम्म. ठीक है. एक ये लाइन हो गया. दूसरा ये हो सकता है कि इसराइल गवर्नमेंट की तरफ से भी होगा कि हो सकता है वॉलेटिलिटी इन दैट रीजन ज्यादा है, तो सिक्योरिटी कैसे दे सकते हैं ओवरऑल. ये भी एक तरह से हो सकता है. अब एक मंथली चीज सैलरी ये भी है आर जो अप्रोक्सीमेटली 1.37 लाख. अकोमोडेशन, फूड, इंश्योरेंस कॉस्ट विल बी डिडक्टेड. ऐसा बोलो. आई वाज सेइंग कि इजराइल हमास वॉर जो वहां पे भी वॉलेटाइल सिचुएशन है, तो उस सिचुएशन में भी इट इज डिफिकल्ट टू प्रोवाइड लेबर प्रोटेक्शन। तो ये दो मेन रीजंस हो सकते हैं बिहाइंड दिस स्टेप। हम्म. ठीक है. उत्तराखंड likely to be the first state to implement UCC, Uniform Civil Code. Uniform Civil Code is aimed at for more formulating implementing personal laws applicable on citizen regardless of religion and gender for Uttarakhand.
तो यूसीसी थ्री फोर एरियाज है जहां पर बात होता है कि यूनिफॉर्मिटी इन लॉस, कस्टम, मैरिज एक्ट, इनहेरिटेंस एक्सेट्रा। अब इसमें प्रॉब्लम एक और है कि एवरी स्मॉल कम्युनिटी हैव देयर ओन लोकल कस्टम एंड मैरिजेस एक्ट। अब उसको कैसे यूनिफॉर्म किया जाए? तो इट इज अगेंस्ट द डाइवर्सिटी प्रिंसिपल ऑफ वॉर, ये क्वेश्चन उठता है। सेकंड वुड बी, ऑल्टरनेटिव फॉर्म है कि द इन ईच स्पेसिफिक मैरिज एक्ट और ईच स्पेसिफिक पर्सनल एक्ट of the religion, there can be some provision which can be made uniform, for example inheritance or marriage। ये भी एक तरीके से कर सकते हैं यूसीसी, rather than bringing यूसीसी forward। तो is उत्तराखंड likely to become first state। नेशनल लेवल पे यूसीसी अभी आया नहीं है, तो चर्चा हो। Then coming to next, women commando take on moist stronghold। Maharashtra police stand ready at the critical outpost in Gadchiroli district, Wangeturi। Unknown hills of the unknown hills, ये after the intensive training in jungle warfare weaponry, they have been positioned in so called रेड कॉरिडोर। रेड कॉरिडोर मतलब कि कॉरिडोर, पहले कॉरिडोर था क्योंकि द इट स्टार्टेड फ्रॉम द उत्तर प्रदेश ईस्टर्न, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, देन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। अब वो छोटा होकर के सिर्फ छत्तीसगढ़ एंड कुछ एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना रहे हैं। इट इज अंडर द मॉइस्ट इन्फ्लुएंस, the 200 strong force safeguarding a ballistic proof MAR wall outpost having setup। चैलेंजिंग जॉब है, लेकिन इसमें भी दिखाया जा रहा है कि जेंडर न्यूट्रलिटी को प्रमोट किया जा रहा है। इसमें विमेन आर टेकिंग अ लीड रोल इन कमांडो ट्रेनिंग। ब्रू रियांग सेटलमेंट, Tripura government has allocated under the Bru Riang settlement between the Tripura government, then Mizoram and central government, उसमें था कि द मिजोरम ब्रू वेर गिवन अ रेफ्यूजी स्टेटस और वो त्रिपुरा के अंदर में उनको सेटल किया जाएगा। 6,959 ब्रू ट्राइब कंप्राइजिंग ऑफ द 37,000 person, they were permanently settled in 12 different locations across the 4 districts in state। तो ब्रूंग जैंग सेटलमेंट इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी डॉक में इसमें डिटेल में दिया, देख सकते हो। जो ब्रू रियांग tribe, they fled from the Mizoram region due to the persecution, ethnic persecution by the majority। इसके बाद वो सेटल किया गया उन्हें त्रिपुरा और बाकी जगह पे। The government of Tripura, Mizoram with a representative of root refugee who fled the ethnic tension in the Mizoram in 1997। और गवर्नमेंट ने रिहैबिलिटेशन किया उनको, रीसेटल किया, मंथली राशन स्टाइपेंड भी दिया गया। तो ऑल दीज आर पार्ट, जो ब्रू सेटलमेंट हो गया या फिर अल्फा के साथ ट्रीटी अग्रीमेंट ट्रीटी हो गया, तो ये सब जो पार्ट है इट इज नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट प्रोसेस एंड नॉर्थ ईस्ट को स्टेबलाइज करने का लॉन्ग टर्म प्लान है, क्योंकि तभी जाकर के नॉर्थ ईस्ट में प्रॉस्पेरिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगा, उसको कनेक्ट कर सकते हैं एक्ट ईस्ट एशियान के थ्रू। सबरीमाला गियर्स अप फॉर मकरा विलक्कू। मकरा विलक्कू कहाँ होते हैं? साउथ। तेलंगाना फाइट्स राइज इन द स्प्यूरियस ड्रग्स, डॉक्टर साउंड अलार्म। ड्रग्स इज चैलेंज इज इम्पोर्टेंट मैनेज टू द सोसाइटी, अगर बोल सकते हैं। हेवी ड्रग यूज, केरला एग्जाम्पल, केरला, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, पंजाब। अब इसमें बोला स्प्यूरियस ड्रग्स, काउंटरफिट ड्रग्स है, डिसिटफुल है। यहाँ पर बात हो रहा है कि ड्रग्स दैट आर बीइंग यूज्ड एज अ मेडिसिन, manufacture medicine to designate as a mimic reputable product, often from the well-known brands, with the intention of misleading the public and capitalizing the popularity of authentic items। ये एक तरह चैलेंज है, नॉट ओनली
they are spurious drugs. It fails to address the intended medical condition, but they can also lead to the disaster consequence of the for the patient over time. तो तेलंगाना में ऐसा बस्ट हुआ रैकेट, तो बोल सकते हैं कि जैसे FSSAI के द्वारा दिया जाता है कि हर एक जो पैकेट फूड है उसके पीछे में कोड होता है, उसको ऑनलाइन चेक कर सकते हो साइट में जा करके। वैसे ही ड्रग में भी दिया सकता है कुछ कोड, इसमें आप ऑनलाइन जाके नंबर चेक कर सकते हो, वो फेक है या असली है वो पता लग सके। एक एक निकाल सकते हैं इसमें। मानसी, और एनीथिंग एल्स? नहीं औशिक, बाकी एरियाज भी हैव कवर्ड। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू ओपन इन 2025. It is completed around 25 to 55 to 60%. And important schemes related to the airport, first is Udan, that is for the affordable air travel across the country, and establishment of the airports in the interior region so that the development can be implemented enforced in that region. तो ये उड़ान स्कीम है, उड़ान 2.0 अभी है। उड़े देश के नागरिक इनका मोटो है लॉन्ग टर्म। उसके तहत बाकी जगह एरिया से भी डेवलपमेंट हो रहा है इंडिया में। अयोध्या एयरपोर्ट, दिल्ली न्यू टर्मिनल, मुंबई, पुणे, कोची एक्सेट्रा। कोची इज द औशिक, ये फर्स्ट। जो हेलीकॉप्टर है, हाँ, कौन से हेलीकॉप्टर्स हैं? ये HAL रुद्र हो गया। ध्रुव हेलीकॉप्टर्स हैं। ध्रुव ध्रुव, ठीक। दीज HAL आर ध्रुव। ऑल्सो कॉल्ड एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स, हाँ, HAL के। हम्म, रुद्र इनके आर्म्ड वर्जन है, ध्रुव। Ban goes unheeded as rooster fights to get patronage in an Andhra Pradesh during Sankrant. Rooster fight, तो रूस्टर फाइट इज अ फेस्ट, ये छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश जब में किया जाता है। अब देखते हैं कि जल्लीकट्टू इन साउथ, बुल फाइटिंग इन पंजाब हरियाणा रीजन, बफेलो फाइटिंग आल्सो इन पंजाब हरियाणा रीजन। तो ऐसे क्यों किया जाता है? टू प्रिजर्व द ब्रीड, टू प्रमोट द इंडिजिनस स्पीसीज, और एक तरह से जो इनका एक जेनेटिक कोड है इसको भी एक सिलेक्टिवली ब्रीडिंग किया जाता है ताकि फिर जो ऑफस्प्रिंग हो वो ज़्यादा इम्यूनिटी हो। तो इसी कारण बेस्ट ऑफ द बेस्ट रूस्टर को यूज किया जाता है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट काऊ हो गए, बुल हो गए, या फिर साउथ में ऑक्सिन को यूज किया जाता है। हालांकि देयर आर क्वेश्चन ओवर द एनिमल राइट्स वायलेशन, और उससे रिलेटेड एक इंस्टीट्यूशन है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुअलिटी ऑन द एनिमल्स, 1960s में बना था एक बार एक्ट। और औशिक, यहाँ पे वी कैन से कि जो इंटेंशन है बिहाइंड these celebrating these festivals, that is right, that is not being questioned, but the way it is celebrated is under question. And despite a ban, still these are happening. तो आप इसको, इस पे क्या बोलोगे कि despite a ban these are being celebrated in the same manner? एंड प्लस इसमें वी ऑल्सो सी कि यहाँ पे रिटर्न, यहाँ लिखा भी हुआ है कि इट इज बिलीव crores of rupees आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू चेंज हैंड्स ड्यूरिंग द फेस्टिविटीज। यस, banning is a deterrent procedure. The public attitude towards the festival, towards the rooster fight, must be promoted by the local administration, और अवेयरनेस करना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द क्रुअलिटी ऑन द एनिमल्स, तभी जाकर वो रोक सकता हूँ। क्योंकि बैन तो एक एक मेजर, हार्ड मेजर हो गया, दैट इज इन्फोर्स बाय द एग्जीक्यूटिव। लेकिन तभी होता है, इसका मतलब क्या है कि लोग के अंदर में अवेयरनेस नहीं, लोग के अंदर में अवेयरनेस है लेकिन एक इनिशिएटिव लोग की तरफ से नहीं है कि इसको बंद किया जाना चाहिए, ऑल्टरनेटिव क्या होना चाहिए। FCI should emerge as a trusted partner of the farmers. FCI, Food Corporation of India, under the Act 1965, it procures the food grains from the farmer at the MSP rate. MSP decided by CACP.
CACP recommends MSP of 23 crops to the to the Cabinet of Economic Affairs. तो इसमें बोला कि FCI plays a very crucial role in implementing the schemes such as प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना. अन्न योजना, it is a PDS, इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, एक गरीब कल्याण योजना था, अन्न योजना है. It is PDS mechanism under the NFSA, National Food Security Act 2013. Long-term objective of it is to deliver affordable, cheap rate food grains, rice, wheat and pulse. चना भी हो सकता है इसमें, अन्न योजना में. और आप दे तो 80 करोड़ बेनिफिशरीज को. तो क्या करना चाहिए? तो ऑपरेशन कॉस्ट रिड्यूस करना चाहिए, मैकेनाइजेशन, लोडिंग अनलोडिंग, इनोवेटिव सोल्यूशन, स्टोरेज मैकेनिज्म. तो ओपन मार्केट सेल is also done by the FCI to reduce the volatility in the food grain prices in the country. Quality can be achieved. तो दो इसमें इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं जो रिफॉर्म हो सकता है. पहला है कि ई नैम को प्रमोट कर सकते हैं, कुछ ही स्टेट में ई नैम अभी है, उसको ऑल ओवर इंडिया प्रमोट कर सकते हैं इंसेंटिव दे करके, क्योंकि अभी APMC का होल्ड ज्यादा है मंडी के ऊपर में. सेकेंड वुड बी वेयर हाउसिंग. इंडिया में जो वेयर हाउसिंग विद रिस्पेक्ट टू द कोल्ड स्टोरेज ये कम एज कंपेयर टू द बिग कंट्रीज सच एज US और यूरोपियन कंट्रीज एक्सेट्रा, वहां प्रमोट कर सकते हैं वेयर हाउसिंग. तो वेयर हाउसिंग एक्ट के अंदर में वेयर हाउसिंग प्रमोट होता है, अथॉरिटी भी है. 2007 एक्ट आई थिंक, मानसी फ्रेंच. यहाँ पे और जो कीवर्ड है इट इज कि फार्मर्स के साथ ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी को और ज्यादा बिल्डअप और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है ऑन द पार्ट ऑफ FCI. तो ये जो आपने सारे रोल्स बोले ये तो परफॉर्म करता ही है. वही ट्रांसपेरेंसी एफिशिएंसी कैसे बढ़ाया जाए? तो पहले ई नैम को प्रमोट किया, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा. ई POS मैकेनिज्म है, फार्मर जाएंगे फार्म गेट के ऊपर, अब वो डायरेक्टली उनको प्राइस मिल सकता है, रेन्यूमरेशन मिल सकता है, रादर देन के मिडिल मैन जो वहाँ रहते हैं, अरथिया रहते हैं बाकी सब. सेकेंड हो गया कि एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी. तो एफिशिएंसी आ सकता है जब वेयर हाउसिंग आपको बढ़ाएंगे. ECA जो एक्ट है, एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट, दैट इज इट इज यूज एग्जीक्यूटिवली बाय द एग्जीक्यूटिव टू reduce the volatility in prices. तो ECI एक तरह का इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट है, वो कभी कभी सही रहता है. फॉर एग्जांपल अगर टॉप का प्राइस इंडिया में बढ़ चुका है, अनियन उसी में आता है, टमाटो अनियन पोटैटो, उनका प्राइस बढ़ा है, या शुगर केन से रिलेटेड प्राइस बढ़ा है, तो देयर इज अ इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट थ्रू द ECA. रिस्ट्रिक्शन, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन किया जाता है ऑन द, लेकिन उसको कम किया जा जो सकता है वो बात. कोर्ट बैन जो है उसको, उसके लिए जो फार्मर्स बोल रहे हैं कि हमारा इंटरेस्ट इज गेटिंग हर्ट, तो उनके लिए और क्या ऑल्टरनेटिव है? एक तो आपने बोला ई नैम पोर्टल है, एंड देन सेकेंडली FCI कैन ऑल्सो प्रोक्योर. तो ई नैम इज फॉर selling of their produce and their harvest across different markets in India electronically, digitally, and plus वो transparently भी होता है when we talk about the pricing mechanism. Secondly, if FCI would be procuring, तो this would be also benefiting us from the perspective of food security also, and farmers' interests would also be met. So that's how this change can be done. As we are seeing कि the government has newly introduced the procurement of pulses. So again, we are building up the buffer stock for the pulses also. So that is going to help us in tackling the food inflation also in future. Yes. फिर I ई had a नाम को question. हाँ, जैसे रूरल इकोनॉमी से कनेक्ट करने की बात करते हैं कि अभी भी देखते हैं काफी जगहों पर ई नाम कनेक्ट नहीं है, फिर यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज नहीं है, इवन रोड भी नहीं है ट्रांसपोर्टेशन के लिए. तो उस चीज को किस तरह से कनेक्ट किया जाएगा उनके साथ, ताकि जो फार्मर्स है जो पूरी तरह से सिर्फ या तो फार्मिंग पे या फिर जो उनके फिशरीज इनके ऊपर डिपेंडेंट है, ताकि उनको भी बेनिफिट पहुंचाई जा सके. रूरल इकोनॉमी की बात करते हैं. रूरल इकोनॉमी बात किया जाए तो वहाँ पर आप बोले रोड नहीं है, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो ऐसे भी तो कर सकते हैं कि कंपनी से डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल मोनसेंटो वाले जो केस हुआ था उसमें भी तो डायरेक्टली कंपनी प्रोक्योर कर सकती, और फिर किया जा सकता है कि वो एक एरिया हो सकता है. सेकंड बोल सकते हैं कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसमें फार्मर पुट कर दे कि मेरे पास इतना प्रोड्यूस है, इसको सेल करना है. अब जो ट्रेडर होंगे वो उस इलाके में
वो देख सकते हैं कि इतने फार्मर है, इनके इतने प्रोड्यूस है, जाके क्वालिटी चेक वहां जाके करेंगे और ट्रेडर खुद से जो भी ट्रैवल कॉस्ट होगा सब चीज पे कर सकते हैं। एक ये भी पॉसिबिलिटी लेकिन है, स्टार्टअप इसमें भी फार्मर्स को भी तो इतनी स्किल होनी चाहिए कि वो अब जो नए फार्मर्स हैं उनसे सोच सकते हैं कि उनके पास इतना फोन होगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी, इतनी नॉलेज होगी कि वो अधिकतर कनेक्ट कर ले। फार्मर जो लेकिन होता है वो लगता है यहाँ से कि इंटरनेट फोन होगा नहीं होगा, लेकिन अधिकतर इंडिया में 92% पेनिट्रेशन है। इसीलिए स्मॉल मोबाइल तो है ही सबके पास, छोटा सा मोबाइल, उसके थ्रू भी आप कनेक्ट हाँ, कर सकते हैं। और लोकल हर एक ग्राम पंचायत के अंदर में कॉमन सर्विस सेंटर तो पीछे इलाके में भी है ही, अभी भी करीब करीब। अब प्रॉब्लम यहाँ पे एग्जैक्टली ये अब है कि ट्राइबल। हम्म, बोलो। हाँ, उसी का आप ठीक कह रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मोबाइल भी है, सब कुछ है। इवन इशू आता है प्राइस का। जरूरी नहीं है कि वो जाके कोल्ड स्टोरेज बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट डालेगी तभी होगा। फार्मर्स अपने पास भी स्टॉक रखते हैं, लेकिन वो जब एमएसपी आई है तब नहीं देना चाह रहे, बाद में देना चाह रहे। तो हम एक मैकेनिज्म बना सकते हैं कि अगर वो बाद में भी देना चाहें तो प्राइस वोलेटिलिटी है जो, अगर कम चला गया या ज्यादा चला गया तो उसको मैनेज किया जा सके। और आप जहाँ बात कर रहे हैं कि उसके फार्मर लिए खुद ऑनलाइन रखते हैं, पोर्टल बन सकते हैं। तो रखते हैं ऐसे अनियन को रखते हैं अपने अंदर में, वो फिर क्या होता है कि जब लगातार 2 3 4 महीना रखते हैं तो फिर उसमें फिर एक बैक्टीरिया और बाकी सब लगना स्टार्ट हो जाता है, सड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा कर सकते हैं कि एक और तरीका है, PACS, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है, और कोऑपरेटिव जो लोकल लेवल पर है उसके हम्म। थ्रू हर एक फार्मर एक जगह में एक कोल्ड स्टोरेज बना सकते हैं शॉर्ट टर्म लोन लेकर के। ऐसा भी हो सकता है। और हाँ वो भी सर। जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अगर ट्रेडर को पता चल जाए कि ये इलाके में इतने फार्मर है, इनका इतना प्रोड्यूस है, वो आके डायरेक्टली क्वालिटी चेक घर में आके करेंगे और फिर लेके चल जाएंगे प्रोडक्ट। उनको तो एक ही जगह मिल रहा नहीं, यहाँ पे है। अगर जो कंसर्न रेज कर रहे हैं सचिन की प्राइसिंग इश्यूज होते हैं कि अगर मार्केट में प्राइस वोलेटिलिटी है, प्राइसेस कम है, तो बेस्ट सोल्यूशन अभी जो हमें देखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स की फार्मर्स ज्यादा ई नाम पे सेल कर रहे हैं। तो ई नाम पे आप डिफर मार्केट्स में जो मार्केट डिटर्मिन्ड प्राइस है उस पे आप सेल कर सकते हो। तो इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग द कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज बाय द फार्मर्स, फार्मर्स की हम बात करते हैं, दे आर कॉट इन द विशियस साइकिल ऑफ डेट, तो उनके लिए इस चीज में इन्वेस्ट करना क्रेडिट लेके, ये आई डोंट थिंक दिस इज feasible. सो वी आर सीइंग कि और अवेयरनेस हम जनरेट कर सकते हैं अबाउट कि आप ई नाम को कैसे एक्सेस कर सकते हो, कैसे उस पे आप अपना प्रोड्यूस सेल कर सकते हो। मानसी, यहाँ बात हुआ था कि इनाम हर जगह अवेलेबल नहीं है और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी है, रूरल एरियाज में रोड्स भी नहीं है, ई नाम उसमें क्या कर अवेलेबल नहीं सकते है, ई हैं? नाम वो बात। डिजिटल पोर्टल है ना, ऑनलाइन जाके सेल कर सकते हो। ई नाम अवेलेबल नहीं है, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट कि स्मार्टफोन्स एक्सेस है, इंटरनेट एक्सेस है, तो ई नाम कैसे अवेलेबल नहीं हो सकता। हो सकता है हर कहीं कहीं स्टेट पर। में नहीं है ना मानसी। हाँ, हर स्टेट में नहीं है ना। इसका तभी तो फिर दूसरा सोल्यूशन निकाला था, ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव इंटरनेट, ऑल्टरनेटिव टू इनाम, ई नाम के पीछे एक्सेट्रा। आइडिया ये कि इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आपको उसी स्टेट में उसी मार्केट में सेल करना है, आप इंडिया के किसी भी मार्केट में सेल कर सकते हो। ये पेपर पे है, ग्राउंड के बात कर रहे हैं हम लोग कि वहाँ पे इनाम नहीं है कुछ कुछ जगह पे, तो क्या करना चाहिए? ग्राउंड तो पे तो, उसी ग्राउंड पे तो ऐसा भी है कि गवर्नमेंट ने अभी जो छोटा चावल था उस पे तो रोक लगा दी, बासमती चावल भेजा गया बाहर, किसानों से ले लिया, उन्होंने एपीएमसी मंडी में डाल दिया, आगे चला गया। लेकिन आगे क्योंकि वहां से पेमेंट नहीं आई, दूसरे देशों से, तो अब तक फार्मर्स को उसकी पेमेंट हुई नहीं है। हरियाणा में देखोगे तो आप ऐसी पेमेंट नहीं हुई है। तो वो जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो इंटरवीन करके एक बफर स्टॉक या फिर बजट या कुछ ऐसा अलॉट कर सकती है कि कम से कम फार्मर्स को अपने पास से दे दे, और जो बाहर से आ रहा है पैसा उसको फिर गवर्नमेंट मैनेज करे। फार्मर्स को इसकी वजह से सरवाइव ना, वो स्ट्रगल ना करनी पड़े प्राइस को लेकर। हाँ, ठीक। यस, अभी हमने इसीलिए एफसीआई रिफॉर्म्स की बात करी कि एफसीआई प्रोक्योर कर सकता है, जैसे पल्सेस के केस में बफर स्टॉक बिल्ड किया जा रहा है। नेक्स्ट वन, पीपल टेक कम्युनिटी फिशिंग इवेंट, कम्युनिटी फिशिंग, सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ फिशिंग इवेंट इन बामुनी लेक गुवाहाटी एज ए पार्ट ऑफ द हार्वेस्ट फेस्टिवल। तो कम्युनिटी एक्वाकल्चर, कम्युनिटी फिशिंग, आप यहाँ पर हॉर्टिकल्चर और फूड ग्रेन सच एज राइस को भी हार्वेस्ट कर सकते हो और साथ ही साथ फिशिंग भी कर सकते हो। ऐसा भी हो सकता है, जैसे पोकाली राइस जैसे केरला में, हर जगह प्रमोट कर सकते हो एक तरह। रिगार्डिंग द स्पीकर्स पावर, गवर्नर पावर्स कल भी डिस्कस किए कि हाउ व्हाट सुप्रीम कोर्ट हैज सेड अबाउट द गवर्नर्स रिजर्विंग द बिल। यहाँ पर स्पीकर का बात हुआ है कि in 2023 May, Supreme Court had given judgment that is, Speaker must not base the decision
as to which group constitute the political party on the blind appreciation of which group possesses the majority in the legislative assembly. तो एक डायरेक्शन स्पीकर की तरफ दिया था ऑन द बेसिस ऑफ शिवसेना उद्धव ठाकरे कैंप एंड शिवसेना रियल शिवसेना जो महाराष्ट्र का अभी करंट चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे उनका उनके बीच में जो डिफरेंसेस था वो था कि जो तीर धनुष किनको मिलेगा एग्जैक्टली तो इस पे बात हुआ था शिंदे कैंप हैड द मोस्ट एमएलए लेकिन कोर्ट ने कहा वैसा डिसीजन नहीं ले सकते बायसनेस नहीं हो सकता 10 शेड्यूल इसको ऐड किया था 1985 में 52nd अमेंडमेंट एक्ट फॉर द एंटी डिफेक्शन लॉ 10 शेड्यूल के अंदर में इट टॉक्स अबाउट कि कुछ कंडीशन है एंटी डिफेक्शन लॉ लगने के लिए पहला है कि विप अगर आप जारी होता है फ्रॉम द एक्लेंस ऑफ द पार्टी आप उसको फॉलो नहीं करते हो सेकेंड इफ यू आर अ नॉमिनेटेड मेंबर एंड यू हैव ज्वाइंड द पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर 6 मंथ थर्ड 2/3 मेजोरिटीज से आप स्प्लिट करते हो पार्टी तो आपके पास नहीं लगेगा अगर 2/3 मेजोरिटी से नीचे है तो आपके पास एंटी डिफेक्शन लग सकता है चौथा हो गया कि आप पार्टी चेंज कर दिया तब एंटी डिफेक्शन लगेगी आपके ऊपर में तो कुछ एरियाज है व्हेन एंटी डिफेक्शन लॉज इज एप्लीकेबल उसी के यहाँ पे क्वेश्चन था मेरा। जो एक पार्टी है उसमें टूट होती है तब कौन सी पार्टी कौन सा जो वो दल है टूट होने के बाद जिसको पार्टी के अधिकार मिलने चाहिए इसके लिए कोई 2/3 एक्ट है जो पर्टिकुलर जो इससे डील करता है या फिर सबसे बड़ी जो लोकसभा पार्टी रहेगी अध्यक्ष? प्रवेश हम्म। सचिन सबसे बड़ी जो पार्टी रहेगी 2/3 वो रियल बोला तभी लिखा हुआ है ना कि ग्रुप कंस्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ब्लाइंड अप्रोप्रिएशन ऑफ विच ग्रुप प्रोसेस ऑफ मेजोरिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली उससे मैटर नहीं करता है मैटर करता है कि आपके पास कितना ओवरऑल एमएलए है पार्टी से 2/3 आपको होगा तभी आप स्प्लिट करने का मौका मिलेगा मिलेगा और फिर एक तरह से लीगल हो पार्टी का जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो मैटर नहीं करता फिर इसमें। पार्टी का अपना कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बस अपना पार्टियों का एजेंडा रहता है ना अपना खुद का पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन हमारा दल इस तरह से इन नियमों के तहत कार्य करता है हो सकते हैं नियम पार्टी के विप बस किसी इंपॉर्टेंट है कि इफ द विप हैज बीन डायरेक्टेड बाय द एक पार्टी प्रेसिडेंट तो आप अगर बात नहीं माने तो हो सकता है आपको डिस्क्वालीफाई किया जाए लेकिन यहाँ स्प्लिट का बात हो रहा है कि जब हॉर ऐसे क्वेश्चन एलिगेशन होता है ना कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रहा है स्प्लिट हो जाता है पार्टी के अंदर में 2/3 मेजोरिटी की अगर दूसरे पार्टी की तरफ ज्वाइन करते हैं या फिर अलग बनाते हैं तो उसमें एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा मेजोरिटी होना चाहिए माइनॉरिटी बनेंगे तो एंटी डिफेक्शन लग जाए क्वेश्चन मेरा ये था असली पार्टी कौन सी जो 2/3 चले गए एमएलए जहाँ पे फिर एमपी जहाँ पे वो ही फिर असली पार्टी बन जाएगी क्वेश्चन बस इतना था। हाँ तो ये फिर या फिर कोई क्या और होता है कि मतलब ये जब भी जाते हैं ना ऐसा होता है तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट फिर डिसाइड करते हैं और इलेक्शन कमीशन डिसाइड करते हैं किसको चिन्ह मिलना चाहिए तो अभी एकनाथ शिंदे जो चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे उनको एक रियल शिवसेना का चिन्ह मिला था ओवरऑल तो गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड विश्वकर्मा पढ़े थे रिलेटेड टू द हैंडीक्राफ्ट ये पीएम आवास ग्रामीण योजना अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है पीएम जनमन इट इज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द पक्का हाउसेस 1 लाख पीएम जनमन एक तरह से ओवरऑल डेवलपमेंट पैकेज जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना वो एक ओवरऑल डेवलपमेंट पैकेज है वैसे ही जनमन फॉर द पीवीटीजी 18 स्टेट्स के अंदर में और 5 यूनियन टेरिटरी के अंदर में उनका पॉपुलेशन बहुत कम है 24 लाख समथिंग परसेंट इंडिया और मेजोरिटी जो पीवीटीजी है वो मध्य प्रदेश और बाकी सराउंडिंग रीजन में तो वो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइब है प्रिमिटिव बैकग्राउंड लो यूज ऑफ मैकेनाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर स्लैश एंड बर्न करते हैं आज भी और इंटीग्रेशन बहुत कम हुआ है सोसाइटी से तब उनको पैकेज मिल रहा है फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पीवीटीजी पीपल पीएम जनमन ready to protect territorial integrity at all cost army chief said proxy war का जम्मू कश्मीर है because there is a
use of the non-state actor, Jaish e Mohammed, LTT, and the local radicalization of the population youth. तो इसको प्रॉक्सी वॉर बोलते हैं. इट इज अ war that is not fought between the two countries. It is through the other country या फिर नॉन स्टेट एक्टर. तो इम्पोर्टेंट स्पेसिफिक केस स्टडी से रिलेटेड जीएस पेपर 4 प्रोफेशनलिज्म कोर इथोस है एक तरह से. टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द सिटीजन, ट्रस्ट वर्दीनेस, फिर सिक्योरिटी फोर्स के हिसाब से क्या होना चाहिए, एथिकल वैल्यूज, अडेप्टिव टेक्नोलॉजिकल savvy होना चाहिए, अजाइल मॉडर्न बोल सकते हैं. तो कल इससे रिलेटेड बात करते सबलंबम स्कीम, जिसमें बात हो रहा था कि देयर इज अ इंटरेक्शन बिटवीन द आर्मी एंड द पीपल so that the trustworthiness and trust between the two army and the people increases. तो एक ये एक एरिया हो गया. उर्दू पोएट मुनावर राना passes away 71 years. His important famous poem Ma. Rising sea, shrinking sands erode vibrancy of the Ganga Sagar Mela. Rising sea level, erosion of the beach in the front of the Kapil Muni temple on the Sagar Island are turning out to be a damper on the Ganga Sagar Mela. So the administration has put a warning sign and diverted the pilgrimage to other beaches on the island. तो बोल सकते राइजिंग सी लेवल, इट इज ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज, ओशन एसिडिफिकेशन, और दिस शोकेसेस कि जो कम्युनिटीज रहते हैं इन द कोस्टल एरियाज दे आर वल्नरेबल. तो CRZ जो रूल्स है इसका इम्प्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट होता है. तो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल हो गया इसका. द स्टेट गवर्नमेंट हैज पुट टेट्रापॉड. अब जैसे मैंग्रोव्स वैसे ही फिर टेट्रापॉड हो सकता है. दैट इज द फॉर्म ऑफ अ वेव डिसिपेटिंग कंक्रीट ब्लॉक टू अरेस्ट द इरोजन ऑफ द अलोंग द गंगा सागर बीच. तो सैंड इरोजन को कैसे कंट्रोल कर सकते, टेट्रापॉड कंक्रीट ब्लॉक होता है. तो इसको लिख लो एक बार. फिर एक ज्योग्राफी से रिलेटेड टर्म हो गया चार लैंड, लैंड दैट इज फॉर्म्ड बिकॉज द सेडिमेंटेड डिपॉजिटेड इन द रिवर. चार. तो लिखा हुआ है कि एक्सपर्ट ऑल्सो पॉइंट आउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सागर आइलैंड हैज बीन डन इन द वायलेशन ऑफ द कोस्टल रेगुलेशन. जो अभी बात की कि इट इज फॉर द, जैसे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है उनके अंदर में इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन किया जाता है फॉर द फॉरेस्ट एरियाज, वैसे ही कोस्टल रेगुलेशन जोन है फॉर द कोस्टल एरियाज. ये एग्जांपल है ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट जोन particularly in the beyond areas of National Park Wildlife Sanctuary are sporting the warning signboard for the first time in Assam. तो कुछ एरियाज था जैसे क्या बात की है कि कैसे रिड्यूस कर सकते हैं ह्यूमन एनिमल सच एज एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को. पहला कि हनी बी एपीकल्चर कल्टीवेशन अलोंग द बॉर्डर ऑफ द विलेजेस, ये प्रमोट कर सकते हैं. सेकंड कुछ पर्टिकुलर क्रॉप्स, और फिर हॉर्टिकल्चर पर्टिकुलर लैवेंडर या फिर सेंट को आप यूज कर सकते हो, एरोमेटिक प्लांट्स को यूज कर सकते हो. तीसरा हो गया कि सायरन यूज कर सकते हो, और फिर आवाज यूज कर सकते हो. तो तीन एरियाज हो गया जिसको बोल कर सकते हैं. एलिफेंट कॉरिडोर भी बनना चाहिए सो दैट द एलिफेंट कैन पास थ्रू द कॉरिडोर विदाउट हार्मिंग द ट्रैफिक्स जो बीच में रात में आते हैं. तो इंडिया में जो एलिफेंट है इट इज एंडेंजर स्पीसीज. 30 to 40,000 पॉपुलेशन है इंडिया में. वे डिस्कस कि गुलमर्ग में पहली बार देयर इज नो स्नो.
So this showcases the issue of the climate change, impact of the climate change on the Himalayan region also. Still no sight of season's first snowfall. Holding events in higher altitude slope too might be impossible if this trend of the decreased snowfall of the past few years hold. तो कुफरी, तो स्काइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया कुफरी, शिमला में ये, एंड वन प्रिस्टीन स्काइंग स्लोप्स. Skier now prefer high altitude slopes in the Solang Valley in Manali, at Kelong and Sichun Lahore Spiti district, situated at 9,000 to 10,000 feet. तो ओवर द ईयर्स देखा गया कि यहाँ पर कम स्नोफॉल हो रहा है, तो इससे ना है कि लोकल बायोडाइवर्सिटी को खतरा होगा, दूसरा कि ओवरऑल जो टूरिज्म सेक्टर है वो हैम्पर कर सकता है उत्तराखंड जम्मू कश्मीर रीजन में. टूरिज्म इम्पैक्ट होगा. मेजोरिटी ऑफ द स्टेट का जो बजट है, इकोनॉमी, इट इज डिपेंड ऑन टूरिज्म, तो उससे जॉब एबिलिटी, जॉब क्राइसिस हो सकता है लॉन्गर टर्म, मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट हो सकता होगा. द स्पिरिट ऑफ पोंगल इन्वोक्स एक भारत श्रेष्ठ भारत. फेस्टिवल ऑफ पोंगल तमिलनाडु. और काशी तमिल संगम, काशी सौराष्ट्र संगम, तो हर एक संगमम का बात कर सकते हैं, दैट इज टू लिंक द ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एक्सेट्रा फॉर द एक भारत श्रेष्ठ भारत. नेशनल इंटीग्रिटी का बात होता है, नेशनल इंटीग्रेशन का बात हो रहा है, सिटीजन के अंदर में एक फेटर्निटी का बात होता है, उसको प्रमोट कर सकते हैं. ड्यूरिंग पोंगल फ्रेश क्रॉप इज ऑफर टू द गॉड विच पुट्स द अन्नदाता किसान एट द सेंटर ऑफ द फेस्टिव ट्रेडिशन. इट इज हार्वेस्ट फेस्टिवल. तो लोहरी हो गया, फिर मकर संक्रांति इन द ईस्ट इंडिया. तो श्री अन्ना, तो श्री अन्ना एक मिलेट. It has been, the government has been promoting the Sri Anna millet among the youth. Majority of the startup have been opened in this. और हर जगह इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 भी डिक्लेयर हुआ था यूएन की तरफ से. तो ये इनका हाईलाइट था. थिरुवल्लुवर, थिरुकुलर जो लिखा गया है बाय थिरुवल्लुवर सेंट है, और इट टॉक्स अबाउट द मॉरल कोड, एथिकल कोड, जैसा एक इंडिविजुअल को रहना चाहिए सोसाइटी के अंदर में, जैसे एक रूलर को बर्ताव करना चाहिए, बिहेवियर दिखाना चाहिए टुवर्ड्स द पीपल. गवर्नेंस की ओर बात होता है, लोकल मैरिज कस्टम एवरीथिंग, एथिकल मॉरल हर चीज से बात होता है. जैसे अर्थशास्त्र है नॉर्थ के लिए, वैसे ही बोल सकते हैं कि थिरुकुलर और थिरुवरुवर जो सेंट पोएट थे, थिरुकुलर जो टेक्स्ट है वो उसी डील करते हैं होता है. तो इसको एथिक्स पेपर में लिख सकते हैं, कोट कर सकते हैं. Pongal is a start of Uttarayana, when the sun turns north and travels for 6 months. Auspiciousness of the Uttarayana is evident from the fact that Bhishma patiently waited for days of the Ratha Saptami to commence in order to end his sojourn on earth. So it is worship of Surya. Thai Pongal, Mattu Pongal, Kannam Pongal are the festival of this time when young girls pray to the 9 rivers: Ganga, Yamuna, Saraswati, Godavari, Krishna, Kaveri, Narmada, Tungabhadra, and Saryu river. This is a quantum computer. तो इसमें मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ द क्वांटम कंप्यूटर इज क्यूबिट. इसका वैल्यू 0 और 1 दोनों हो सकता है एक ही समय पर. इट इज अ फिजिकल ऑब्जेक्ट दैट हैज 2 स्टेट. बिट इज द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोरेज. जैसे हम लोग बात करते हैं किलो बाइट, 8 बिट्स इक्वल